Hello, this is the My Artifact episode number 2445. Today's date is the 6th January of 2022. The last time I make Artifact episode at the 4th of January 2022. So yesterday I didn't really make any Artifact episode. And why? Okay, why? Yeah, that's a really good question. First of all, is that yesterday I didn't really make any Artifact episode because yesterday I was shooting. Okay, actually I started shooting at almost like that ki 8:30 p.m. and I had done my shooting till 9:30 p.m. But actually I didn't really shoot at that piece. Okay, it's on my forehead. Okay, and it's quite a big. Okay, and it's just like when you show your face to the camera and in that face have some sort of pimple in it, people will just quickly get something like uneasy thing. या यानी एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है बस उसका विजुअल या शक्ल देख के ही. ओके, अगर वो कितना भी अच्छा बात करे ना, it just feels something really weird. Okay, and it actually feels something really weird. So yeah, and people get really distracted by the pimples too. He was looking at that pimple. Why? Because of that actually the human mind is actually very much focused on the negative things. Okay, यानी अगर 100 लोग आपको तारीफ कर रहे हैं और एक बंदा आपको माँ की गालियाँ दे रहा है तो ऑब्वियसली आपको वो गाली सुनने देगी. ओके, बट 100 बंदे अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो वो नहीं सुनाई देंगे. Why? Because our brain is actually built up by those things. So this is exactly and this is exactly I want it to be. I just think that ki if I record video and then I start editing and doing something like that, and then I upload that video on the pimple on my face, that it doesn't look really feel, it feels really weird. Okay, so that's why I decided that ki I just need to wait for 2 or 3 days, but during these 2 or 3 days I have to add it. Let me tell you one thing about this project is actually very fast, so much transition and text animation. It was so much. Okay, I have to animate almost like the paragraph of the text I have to animate. Okay, so and there are so many time time lapses and there are so many things. Okay, so basically I am interacting with the camera is less than 30 seconds. Okay, in the entire video I am actually interacting on the camera is almost like a less than 2 minute, and the entire time is actually going on the text animation or maybe b-rolls and all those things. Okay, so and this project is actually very much important to me as also. Why? Because of that ki I'm actually putting a lot of efforts in it, because actually I'm setting up the like I didn't really before any previous project I didn't really focus on the first 30 seconds of the video, but in this video I actually so much focus on the first 30 seconds of the video, and it just kind of like a feels something really good, it feels something really fast, people will encourage to watch even further. Okay, so this is the exactly I want it to be, and it really good, it is something really great. Okay, and as also I am actually get in depth part of my creativity and all those things. So yes, so yesterday because of the shooting I didn't really record, and as also why I cannot record because of that ki it just like there are so much cold over here, like it is almost like a 14 or 15 degree celsius, and which is even cold. Okay, and basically your body wants to be your body wants to
he just kept inside the home, be warm and feels like that. Yeah, so that's why I am actually my body is actually resisting to came outside, like I came on the terrace and make the artifact episode. So that's why. But actually I was like, I am actually talking in my head so much, a lot. Okay, so yeah. So what is exactly happened today? So today I wake up at 7 a.m. Actually, from last 3 day, I'm actually wake up at almost like a 7 a.m. Okay, almost like a 7:05 or maybe 7:10 or maybe 7:15 or maybe 6:55. But actually, I'm waking up almost like that ki 7 a.m. Okay, like whatever. Like if I sleep at maybe 1 a.m. or maybe 12 a.m., still I wake up at 7 a.m., and that is really good habit. Actually, I wake up at morning at 7 a.m. naturally, without any alarm, without anything. So it is really good. Okay, then after that, I just started doing my work almost like that. Actually, is that okay? This is actually very critical part of editing, because of I have a little bit of paragraph, and actually I was thinking about key how to animate the text. Okay, like there are so many text animation. First of all is that key I just wanted to be my text is written in the video format. Okay, just write on. Okay, so I just want that effect, and that effect is actually very big lengthy, because you have to animate the every letter in the every word. And it is kind of like a very like, actually, first of all I didn't really know about this write on effect. First of all I was thinking is that yeah, I just need to record the screen, and I just need to write somewhere about this comparison thing, and while doing is that I just need to record that screen, and then that recording screen I need to use in the Premiere Pro, and I try to do some sort of zoom in, zoom out, and a speed up, and some sort of sound effect. So I just sooner or later I went to the YouTube and try to look for the every solution I can get, and there is a solution I can get is that write on. But that write on effect is actually really not so workout, because the write on effect is actually work on a single word. If you have one single word, or maybe more than less than 5 word, so that is good. But if you have almost like the paragraph, in that paragraph you have almost like that key 400 to 500 letters, so this effect will take too much time to do that, and it is not really good way to do. Okay, so there is another way, there is another way that you can little bit of give the transition to the text animation, and it is something really good, but it's kind of like a very linear format. Okay, so it's not exactly for the text animation, is actually meant for the video animation, but it kind of like a, if you do little bit of Zugad, then it will be work on the text animation too. So I tried and it will work out, and for all those things I have to figure it out. Like actually I was in my computer from almost like that ki 7 a.m., and I was started thinking about ki how should I do it, how should I do it. I went to the internet, I download such app like PixArt and things like that, and as also I went to the Photoshop or do something like that, and then I also went to the YouTube, and so after the I got the solution and like a write on effect, then it will not work out, then I went to the somewhere else. So basically I was actually thinking from almost like that key 8 a.m. to 11:30 a.m. Like I never really did anything till 11:30 a.m. I was actually thinking and planning. Okay, after the 11:30 I started doing something, and I added some of the text rule and B rules, and some of the text animation, and it is really good. It felt really great. I found a great music track which is very much inspired, and has also some of the sound effects, and it
it looks really good, it feels really good. Okay, still I have to cover the almost paragraph, which is almost like that key 3.5 minute, and I did it almost like that key 45 seconds of editing. I did it, still so many things remaining. So yes, actually I was thinking is that ki like I started my work almost like that ki 11:30 till 2:30. uh, then 2:30 I ate my lunch, and then after that I uh, I just did it again, but it will not really work out to me because of that it's almost like that key uh, 3 uh, 3:30 p.m. and I feel really tired, and I feel really hopeless. I don't know, I just wanted to play games, so I play game. And then after that my cousin came, and he wants to watch a movie at theater. And he recommend that there is a uh, South Indian movie, and the South Indian movie, and then which movie? 83, yeah. So we'll just go. Let's watch movies. Yes. So we went like me, my cousin, and my sister. I went to the uh, theater and watch 83 movie. 83 is a really great movie. That movie is actually represent. Okay, let me tell you about this movie. Okay, so basically, first impression about this movie is that like basically, I didn't really watch the trailer. I didn't really watch anything, but Ranbir Kapoor released some of the footages of his 83 movie. Okay, in the Instagram almost like that year ago, and actually Ranbir Singh is actually playing the character of Kapil Dev. Okay, so when he published his photos on Instagram, when I see that photo, the photo is actually look like Kapil Dev. Actually just like that कि आप 2 सेकंड के लिए आप यही हो जाते हो कि क्या ये कपिल देव है, एंड देन यू फिगर इट आउट कि नहीं ये रणबीर सिंह है. ओके, द वे दैट the casting and the everything is really good. Okay, is something really that key. Wow, like the first impression about this 83 movie is like it really blessed me. Just it feels like that key, like Bollywood में बहुत सारी फिल्में बनती हैं. Okay, but they are not really worth it to watch. Okay, I just didn't really feel something like that. Okay, but some of the movie is really amazing, and Ranbir Singh movie was even amazing. Like actually, Panipat nahi re. Which movie is that? Uh, Padmavati movie was really incredible, and incredible about what his acting. Ranbir Singh acting was super amazing in that movie, and actually I'm exactly feeling the same feeling about this movie. Like actually I'm feeling about ki I can see the acting of his, and I feel that ki yes, this is the thing that I wanted to watch. Okay, and almost like that ki this is actually I saw this photo almost like the year ago. Okay, but when I seen the trailer, I seen the trailer, and when I see the trailer, the acting is really amazing. It is really amazing. It is jabardast. Okay, so this is the my first and initial impression about this movie, and as also so many people are actually commenting that this movie is really incredible and all those things. Okay, but I didn't really know about the 83. What is the meaning of 83? I just didn't really know about anything. I just know about ki this is the movie about the biography about the Kapil Dev. Okay, but this is not. Okay, actually, let me tell you one thing about this 83. Why 83 means what? Okay, why the name of the movie is 83? What is the meaning of 83?
Okay, 83 is actually a 1983 is actually represent a year of 1983. What do you mean? Means like that कि right now you can see the fever of cricket in India. It started from that point. What do you mean? Okay, let me tell you one thing is that कि why hockey is not really popular in our India. Why football is not really popular in India. Yeah, some people are playing football, some people are playing hockey, but they are not actually even, they are not actually compared to the cricket. Cricket is very much popular, so much popular. Why? Why? Because of that, कि in 1983, India won the World Cup. Sounds really cheesy to you because of that कि right now we won so many World Cups in the previous year, so it's just not really work out. But at the time of 83, try to understand the perspective of the people at that time. At this time, Indian people didn't really recognize for anything. यानी वो इंडियन लोग जानते भी नहीं थे कि मैंने किसी को पता भी नहीं था कि इंडिया में भी लोग रहते हैं और ये क्या है वगैरह वगैरह. दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम 1983 कि यहाँ पे लोग जानने लगे कि यस इंडिया में पोटेंशियल है कुछ करने का. And that potential is actually represent in that movie. That's why this 1983, this 83 represent the Indian cricket culture. It started from 1983, and that's why I feel really engaged. Actually, is that ki I watch I seen the photos of the Kapil Dev who is holding the cricket, and I do know about that ki Kapil Dev won the first World Cup in India in 1983. But actually, I didn't really know about what does effect, what how much hard work, the effort to making that dreams come true. I didn't really know that. I was actually feel that ki, yeah, just good like a whatever you are thinking right now, this is exactly I am thinking at that time. Hey, just like India won the World Cup almost like 2 years ago, so what is exactly, it's really nothing. Okay, but yeah. And actually like I didn't really find any reason to not to watch that movie. Yeah, it just like first of all Ranveer Singh acting is incredible. There is also one thing that I like about this movie: production. भाई क्या गजब का प्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल कलर ग्रेड इज़ रियली गुड. एवरी शॉट यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी शॉट दे शूट ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ शूट इज़ शूट एट डे. ओके, यानी पूरे दिन के शॉट है ऑलमोस्ट लाइक 90, ऑलमोस्ट लाइक 10% ऑफ शॉट इज़ एक्चुअली अ नाइट, बट मोस्टली डे. मोस्टली पूरे के पूरे शॉट्स है ना वो डे में है. ओके, सो बेसिकली इज़ दैट कि जब भी आप दिन में शूट करते हो ना, तो वहाँ पे कुछ तरह से दिन में बाहर में ओके इज़ एक्चुअली इज़ ओपन, यानी ये सब शूट हुआ बाहर शूट हुआ. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है एज अ फिल्म मेकिंग में. ये सारी चीज़ें शूट करना दिन में बाहर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. वाई हाउ? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल योर कैरेक्टर इज़ मूविंग एंड द लाइट इज़ एक्चुअली स्टेबल, क्योंकि आपको सन तो दिखाना है. बेसिकली फिल्म मेकिंग में 3 लाइट पैटर्न सिस्टम होता है. एक की लाइट, बैक लाइट, फील लाइट वगैरह वगैरह, और इस तरह से आप प्रॉपरली स्टोरी टेलिंग कर सकते हो. बट अगर ओपन में अगर कुछ दिखाना है तो आपके पास सिर्फ 2 ही लाइट है. एक तो है सन जो नेचुरल लाइट, और दूसरा है नेचुरल लाइट वो वहाँ पे स्पिल हर जगह से स्पिल हो रहा है, हर जगह से कहीं से भी रिफ्लेक्शन आ रहा है. एंड जस्ट इट इज़ रियली नॉट सो गुड, क्योंकि जिस तरह से आपको क्वालिटी ऑफ फुटेज चाहिए वो दिन में ओपन में
नहीं निकलती। इट्स नॉट रियली वर्कआउट यार। कुछ तो शैडो चाहिए, कुछ तो डेप्थ चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को फील कर सके हो। पर जिस तरह से कलर ग्रेडिंग किया है ना, इट लुक्स रियली गुड। क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि बेसिकली ये जो कलर ग्रेडिंग का इफ़ेक्ट है ना, ये पोस्ट प्रोडक्शन में इतना प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान किया था कि इट विल बी नॉट रियली वर्कआउट। ओके, क्योंकि अगर हम रात में दिखाते हो तो ऑब्वियसली उस वक्त यानी 1983 में जब भी शूट यानी जब भी मैचेस हुए थे वो दिन में होते थे, रात में होते नहीं थे। ओके, अगर होते थे तो वो बहुत कम होते थे। बेसिकली देवर प्ले एट ड्यूरिंग द डे। ओके, सो what is my point? My point is that ki color grading, yes, first of all color grading is really good. The way that they use really high quality of camera, maybe they are using Arri and some sort of I don't know, but whatever they are using the camera, they was using the camera, it was actually a very d-log or very raw or very uncompressed file. Okay, that's why you can achieve that kind of quality in the post production. Because of that key, if you shoot at day at outdoor and लाइट का तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होता भाई, नथिंग एट ऑल, क्योंकि हर जगह से लाइट आ रही है, इधर से उधर से, एंड हु नोज वेयर इट कम। और वे स्टेडियम से तो वाह, तो डेप्थ तो कहीं मिलता ही नहीं। एंड एक्चुअली फिल्म में डेप्थ है भी नहीं, आपको शैडो दिख भी नहीं रहा किसी से, किसी भी चेहरे पर। कुछ कुछ सीन है जहाँ पे डेप्थ दिखाए गए हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द सीन जो शूट हुए हैं ग्राउंड में, स्टेडियम में, वहाँ पे डेप्थ है नहीं। ओके, बट द कलर ग्रेडिंग इट्स वर्क्स रियली फाइन। बट द वन थिंग दैट कैन आई टेल यू इज दैट प्रोडक्शन, भाई क्या कमाल का काम किया यार, बेस्ट इट जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्टिंग, भाई मैं पागल हो गया यार। इट जस्ट लाइक रणबीर कपूर को इस फिल्म के लिए कास्ट नहीं किया गया, सॉरी, रणबीर कपूर को इसलिए कास्ट नहीं किया गया कि वो अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, नहीं, वो अच्छा दिखते हैं कपिल देव के कैरेक्टर में, उनका स्किन टोन एग्जैक्टली मैच करता है। क्योंकि रणबीर सिंह का जो स्किन टोन है वो हल्का सा ब्राइट नहीं है, लेकिन हल्का सा डार्क भी नहीं, लिटिल बिट ऑफ सावड़ा काइंड ऑफ लाइक दैट। सो बेसिकली इट शेड कपिल देव के कैरेक्टर के साथ। ओके, सो बेसिकली यस। ओके, और आफ्टर दैट जितने भी कैरेक्टर को कास्ट किया गया फिल्म में, भाई कमाल के, इट्स एग्जैक्टली लुक लाइक दैट व्हेन यू कंपेयर टू द रियल फोटो, लाइक सुनील गावस्कर एंड दिस इज, एंड देन रवि शास्त्री एंड दिस एंड दैट, इट लुक्स फिनोमिनल, एकदम एग्जैक्टली दिखते थे। द फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्टिंग, हैट्स ऑफ, बेस्ट। दूसरी चीज़ प्रोडक्शन, फ्रेम में हर चीज़ दिख रही है, इट इज़ वेल प्लान, वेल एक्यूरेट, हर चीज़, यानी शूज़ उस वक्त किस तरह से दिखते थे, उनका ड्रेस, उनकी पोजीशन, छोटी छोटी चीज़ें यार, इट जस्ट लाइक दैट कि सूटकेस से लेके वो रेडियो, टेलीविज़न, एंटीना, और जस्ट लाइक वो आपको माइंड पकड़ लेता है यार। इट फील्स लाइक दैट कि वो मॉडर्न तो है बट वो पुराने भी लगते हैं, बट वो मॉडर्न है, वो उसी तरह से फील दे रहा है हर एक ऑब्जेक्ट। एंड एक्चुअली ना क्या, ये जो बातें कहने में इतना आसान लग रहे हैं ना, इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि भाई आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि सूटकेस है तो आप कौन सा भी रैंडम सूटकेस उठा के नहीं डाल सकते, वहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ता है कि हाँ सूटकेस, तो ये सूटकेस में कौन सा डिज़ाइन, कौन सा पैटर्न था उस वक्त 1983 में। ओके, तो आपको पूरा पढ़ाई करना पड़ता है, पूरा कैटलॉग बनाना पड़ता है कि 1983 में वो कौन से फर्नीचर इस्तेमाल करते थे, कौन से सिगार, कौन सी शूज़, कौन से लेस। ओके, आपके क्लोथिंग किस तरह से रहेंगे, आपकी फैशन किस तरह से रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो अनदर फॉर द मेकअप आर्टिस्ट की कास्टिंग तो ज़बरदस्त की है। ऑल्सो द वेस्ट इंडीज़ पीपल,
उनकी भी कास्टिंग बेस्ट, उनके हेयर स्टाइल, उनके चश्मे, गॉगल्स, it exactly represent 1983, and it's really good. Okay, and not only the just like a small thing, like a big thing, like a vehicle, cars, bikes, buses, best. Okay. कुछ कुछ जगह है ना जहाँ पे मुझे लगा कि ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल किया गया है ना, ऑब्वियसली दे यूज़ ग्रीन स्क्रीन, एंड वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। जहाँ पे कपिल देव स्पीच देते हैं टीम मीटिंग, ओके, बस में, तो वो सीन में भी मेरे हिसाब से लाइक इफ आई नो दैट सीन वाज एक्चुअली शूट एट ग्रीन स्क्रीन। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट कि जब भी आप बस में खड़े होते हो तो ऑब्वियसली यू फील रियली अनईजी, क्योंकि गाड़ी मूवमेंट में रहती है। आप यूजुअली खड़े ज़्यादा देर नहीं रह सकते, आपको किसी को होल्ड करना पड़ेगा। बट वहाँ पे कपिल देव या सॉरी रणवीर सिंह सीधा खड़े होके हाथ अपने जेब में डाल के वो बता रहे, और वो भी इतनी फ्रीली, और वहाँ पे हम देख भी रहे कि गाड़ी मूवमेंट हो रही है और कैरेक्टर को कुछ भी फील नहीं हो रहा। नॉट ओनली द इक्विपमेंट, नॉट ओनली एनीथिंग, जस्ट इट इज़ फील समथिंग रियली ऑफ। और लाइट का भी जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही अजीब सा था, क्योंकि बस में लाइटें आती है वो खिड़की से आती है, तो ऑब्वियसली इट केम्स फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम द टॉप, तो वहाँ पे भी लाइट का थोड़ा सा इशू लग रहा था। बट हाँ, इमोशनल इतना ब्लेंड हो गया ना, तो इतना ज़्यादा फील हुआ नहीं, क्योंकि आप भूल जाते हो। क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हो ना अगर किस चीज़ में, तो आप डाइवर्ट कर सकते हो। ओके, अगर इमोशनल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ऑडियंस के साथ, तो वो ऑडियंस भूल जाते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुआ, या ये प्रोडक्शन में ये थोड़ा सा गलत हो गया, या ये बट अगर थोड़ा सा ऑफ होता है तो समझ जाता है वो। आई फील लिटिल बिट ऑफ एट दैट टाइम, बट या। और दूसरी एक चीज़ है जहाँ पे रणबीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, those people are actually looking at the flag from the window, तो वहाँ पे जो लाइट सोर्स आया था वो सन, यानी ओरिजिनल फ्रॉम द सन, बट एक्चुअली दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट्स, तो वहाँ पे हार्ड लाइट चाहिए थी, तो वहाँ पे सॉफ्ट लाइट क्यों आई जस्ट डिडंट रियली नो। ओके, और बेसिकली अगर वहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ चाहिए था तो वहाँ पे थोड़ा सा हेज डाल लेते थे ना, तो और भी मस्त डेप्थ आता, वो फील आ जाता मॉर्निंग का वो एक तरह से। ओके, बट दे डिडंट रियली यूज इट, इट्स रियल। Whatever, the movie was really amazing. Okay, is actually not really amazing. Let me tell you one thing, like that कि उन्होंने जो भी सारे इंसिडेंट्स हुए वो रियल में हुए हैं, और रियल में जो चीज़ें होती है वो इतने एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं होती। जस्ट लाइक दैट कि लाइक फिल्म में कैसा होता है कि विलन आ रहा है, मार रहा है, फिर हीरो आ रहा है, फिर हीरो का कुछ नुकसान होता है। देयर आर सो मेनी ट्रेजेडी थिंग हैपेंस आफ्टर यानी 15 मिनट बाद ये हुआ। रियलिटी में ऐसा होता नहीं ना। ओके, सो वहाँ पे ना क्या बहुत सारी चीज़ें थी कि फिल्म को हम किस तरह से इंस्पायर्ड रखे थ्रू आउट ऑलमोस्ट लाइक दैट कि 2.5 आवर। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जहाँ पे उन्होंने एडिटिंग, साउंड इफ़ेक्ट्स और इंस्पायरेशन के म्यूज़िक थ्रू फिल्म को उस तरह से बनाए रखा। और और कुछ स्लो मोशन शॉट्स दिए गए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं दिए। लाइक जस्ट लाइक दैट कि आई सीन द स्लो मोशन शॉट which is really good, yes, but it will be even become better. Okay, first of all is that कि जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का कप्तान जब स्क्रीन पे उतरता है, स्पीच कहते हैं ना, स्पीच पे खड़ा होता है, एंड एवरीवन इज़ एक्चुअली लुकिंग एट हिम बिकॉज ही इज़ द गाय, ही इज़ एक्चुअली वेरी बिग। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने स्लो मोशन किया भी, लेकिन उस वक्त आपने जो कैप्टन है वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन, उसका सर काट दिया। हाँ, उसका सिर्फ यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वहाँ पे बैक शॉट यानी बेसिकली कैमरा हल्का सा मूव हो रहा था
लाइक वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन के पीछे से, और वहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स है उनका रिएक्शन शॉट पूरा लेना था। तो वो शॉट बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो जाता अगर वहाँ पे सिर्फ आपको मूवमेंट दे जाते हैं, जस्ट लाइक लिटिल बिट ऑफ, आपको पैनिंग करना नहीं था, आपको पूरा कैमरा मूव करना था, पैरालैक्स शॉट लेना था वहाँ पे, और वो भी स्लो मोशन में डूड। तो पैरालैक्स शॉट में आपको वेस्ट इंडीज़ का जो कप्तान है उसका इफ़ेक्ट और उसके सामने आने वाले इंडियन प्लेयर्स जो उनके सामने थे वो बहुत ही अच्छे से दिख जाता था अगर वो पैरालैक्स शॉट लेता तो। बहुत ही गजब, आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक्चुअली कबीर खान मेक्स अ रियली इमोशनल मूवी। एक्चुअली ही लाइक उन्होंने जो भी फिल्में बनाई है ना, जो भी वेब सीरीज बना, आई सीन लाइक बजरंगी भाईजान वाज रियली ग्रेट। एक्चुअली ही वाज द मेन पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस मूवी इज़ दैट कि उनका हमेशा कैरेक्टर एक इमोशनल कैरेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है। ही वॉज नॉट एक्चुअली केम फ्रॉम द सिनेमाटोग्राफी थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एक्चुअली ही वॉज फोकस ऑन द इमोशनल वैल्यू, यानी लोगों को, और यही चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं बेसिकली दोज पीपल, एंड दोज आर द थिंग्स आर एक्चुअली मेकिंग देम मेकिंग फिल्म्स रियली इवन बेटर। क्योंकि इन द एंड लोगों को स्टोरी याद रहती है, उनको घंटा फर्क नहीं कि कहाँ पे लाइट कम है ज़्यादा है, क्योंकि पता ही नहीं किसको क्या है। ओके सो yeah, so it's really good, yeah, but still they are using, it was much bigger। अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया होता तो भाई तो यार। और बहुत जगह जगह थे वहाँ पे रिपीटेड शॉट डाल दिए, रिपीटेटिव, यानी जस्ट लाइक दैट कि जब बॉलर बॉल डाल रहा है तो बॉल वो ज़मीन को हिट हो रहा है। ओके वो सीन मैंने 3-4 बार रिपीट में देखा फिल्म में भाई, रिपीट में, यानी जस्ट लाइक ये बॉलर डाल रहा है तो सेम दूसरा बॉलर डाल रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे इम्पैक्ट है वहाँ पे एक छोटे छोटे कट पे 2-2 सेकंड का वो शॉट डाल दिया। आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, मे बी जस्ट लाइक उनके पास ज़्यादा शॉट नहीं होंगे वगैरह, बट अगर इम्पैक्ट डालना ही था ना भाई तो जूतों का लेते ना यार। अगर आप जूतों का शॉट्स लेते ना तो वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता, और भी ज़्यादा, इट फील लाइक द एनर्जी ओवर देयर। बॉल, हाँ बॉल की भी शॉट्स डाल दिए वह भी, हाँ ओके, जस्ट लाइक दैट। ये क्रिकेट में अगर एक बॉलर बॉल डाल रहा है और आपको शॉट्स लेना है, क्रिएटिव शॉट्स लेना है, तो किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रन अप करके वो बॉल डाल रहा है, हाँ दैट इज़ रियली कॉमन, एवरीवन डज दैट, ओके। नेक्स्ट शूज़, क्योंकि वही से ही ग्रिप आती है और इसी से ही बॉलर वो रन अप करता है, तो वहाँ पे वो एक शॉट चाहिए था। दूसरा हाथ का जो मूवमेंट रहता, वो मूवमेंट से वो द लास्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हिज हैंड एंड बॉल, जहाँ पे वो बॉल रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे स्लो मोशन शॉट चाहिए था। और एक स्लो मोशन शॉट जहाँ पे बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग, बट वो रिपीट में लगा बहुत सारी चीज़ें। ओके बट अनदर थिंग इज़ दैट कि स्लो मोशन में नहीं किया उन्होंने 120 पे शूट किया, एंड दैट इज़ रियली नॉट सो गुड। हाँ बट यही फैक्टर होता है ना, अगर आपके पास बहुत बड़ी अनकॉम्प्रेस फाइल शूट करना है तो ऑब्वियसली आपको फ्रेम रेट थोड़ा सा कम मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट स्टिल वहाँ पे क्योंकि कलर ग्रेडिंग में ठीक है, आपके पास अगर 2 सेकेंड की थोड़ी सी क्लिप में ज़्यादा डी लॉक नहीं शूट हो रहा है, बट स्टिल वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप, यानी कलरिस्ट मैनेज कर लेते हैं यार, वो कर लेते हैं, अगर अनकॉम्प्रेस फाइल भी मिल जाती है ना उनको तो वो थोड़ा सा काम निकाल लेते 2 सेकंड के शॉट के लिए, इज़ नॉट रियली वर्कआउट। बट जो इमोशनल कैरेक्टर, जो इमोशनल पॉइंट है, जो स्लो मोशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करेगा, वो उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हुआ 120 फ्रेम पे। ओके अगर उन्होंने 360 या 400 फ्रेम पर सेकंड्स पे शूट किया होता वो उतना सा स्लो मोशन शॉट, तो भाई कमाल यार, बहुत ही मस्त आ जाता। ओके हाँ, ऑल्सो स्वेट और एक चीज़ जो मुझे लगी फिल्म में, स्वेट है ही नहीं। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, सबके शक्ल एकदम चकाचक दिख रहा है, ही लुक्स रियली गुड, ही लुक, कपिल देव लुक रियली गुड,
भाई एक तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, भरी मैदान में खेल रहे हो, दोपहर में खेल रहे हो, और आपको एक स्वेट, हल्का सा घाम या पसीना ना आए, भाई हो ही नहीं सकता। अगर ना आए तो वो ह्यूमन ही नहीं है। वो थोड़ा सा मडीनेस तो होना चाहिए ना, इट फील समथिंग रियली मडी। पसीना है ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई। भाई यही तो चीज़ है ना, अगर पसीना है तो वो गिरना चाहिए। वो पसीना गिरने से वो दिखता है कि मेहनत कर रहे हैं। स्लो मो में लो लो यार, जस्ट लाइक पता नहीं क्यों नहीं लिया यार, इतना मस्त शॉट है यार, पसीने वाला शॉट। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है भाई, एक भी नहीं है। पूरी फिल्म टूर्नामेंट में भरी पड़ी है, यहाँ पे हर बंदा क्रिकेट खेल रहा है, भरी दोपहर में एक पसीना नहीं आ रहा है। What the fuck यार। हाँ, अगर इंग्लैंड में ठंडी रहती है ना, वहाँ पे कैसे पसीना आएगा। स्टिल अगर पसीना डाल देते ना तो और भी मज़ा आ जाता यार। ये जस्ट लाइक दैट कि अगर खेल रहे हो ना आप, तो पसीना तो आना ही चाहिए ना यार। क्यों नहीं आया वो पसीना, आई डोंट नो व्हाई। ओके, और कौन सी चीज़ें जो तुझे अच्छी नहीं लगी। दीपिका पादुकोण ज़रूरत नहीं थी या आई जस्ट, बट स्टिल कपिल देव्स वाइफ तो ठीक है, बट इतना ज़्यादा इंटेंशन ड्रैग नहीं करना चाहिए था। बट स्टिल दे आर यूजिंग फॉर द मार्केटिंग पर्पज, सो दैट इज़ ओके ओके, बिकॉज मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिल्म मेकिंग के लिए। सो यस, उसके बाद हाँ, फिल्म 83 ये जो फिल्म है, ये रिप्रेजेंट करता है पूरी टीम को, ना कि रणबीर सिंह को, या ना कि कपिल देव को। सो आपको अगर लगता है कि रणबीर सिंह के शॉट्स थोड़े से कम हैं, तो ऑब्वियसली कम है, क्योंकि ये फिल्म उनके बारे में नहीं है, ये फिल्म पूरे टीम के बारे में है। और रणबीर सिंह या कपिल देव उनके एक टीम का एक पार्ट थे। सो ऑब्वियसली मुझे इट डजंट लाइक, वो ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि ये फिल्म एक तरह से डिपेंड है। ओके, सो या आफ्टर ऑल बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके, बैक स्टोरी कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि बैक स्टोरी किसी का कुछ है नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और हल्का सा कॉमेडी, हल्का सा इंस्पिरेशन लाने की कोशिश की फिल्म में, एंड दैट इज़ रियली गुड। आई लाइक द कबीर खान मूवीज़, यानी जिस तरह से वो फिल्में बनाते हैं इसलिए। बट बजरंगी भाईजान वॉज वन ऑफ द अमेजिंग। ओके, क्योंकि बजरंगी भाईजान की जो फिल्म थी वो is still not really worth out. Like 83 movies not really stand in front of Bajrangi Bhaijaan, because Bajrangi Bhaijaan was best. ओके, और उसी फिल्म से ही तो वो ऊपर आए हैं। ओके, लाइक आप कह रहे हो ना कि जो भी आप चीज़ें यानी पहली बार करते हो ना, तो वही चीज़ एकदम बेस्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट बार आप जो भी बनाते हो ना, वो एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है करियर के लिए, या so yes, so this is it. I was talking almost like 38 minutes. So yeah, this is my artifact episode number 2445 right now at Vadam, Maharashtra. Thank you.